आदिवासी समुदाय इस नृत्य के ज़रिए अपनी खुशी को जाहिर करते हैं. Ladies and gentlemen, there is a tribal community which is in Jharkhand and which is also in other parts, in other areas of our country and also in our neighboring countries. That tribal community is known as Santhal. कि वे लोग मंच पर आकर के अपने सांस्कृतिक संथाली नृत्य को प्रदर्शित करें. आले दोले हेज आकाना एनआई टीम वेस्ट बेंगल पश्चिम बंगाल से खय हाँ नितो दो आपे सामांग रे सांताली एनआई सिरिंग ले उदु अपेया नोआ एनआई सिरिंग दो सांताली जहाँ बापला को समय हो दोंग एनआई सोहराय पुष मास जहाँ बादना उत्सव हो उन समय सोहराय एनआई नोआ को एनी से एनआई सिरिंग गी ले मेन सदर पे कना. जोहार, मेरा नाम काजल है, मैं जेएनयू से हूँ. हमारे ये टीम वेस्ट बंगाल से आया है. ये जो संताली टीम है इनका नृत्य जो है दंग नृत्य है. ये बदन पर्व में इस नृत्य को बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है और इसका जो नाम है ये सहराई इसको कहते हैं. और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी लोग स्टेज पर आ जाएं और अपना नृत्य प्रदर्शन करें. Sidakanu Bita kuri boide Muri mata kuri dayate Nyanam linaki Sidakanu Udu kadu kalam takini Hanama mayang kadi takit Disham nadaina Disham nadaina kiru paruwa Bita kuri borite Muri mata kuri dayate Nyanam linaki Sidakanu Dakini hanama mayang kadi takin Disham nadaina kiru paruwa Santara beni babu na beni sidakanu Kitili dalika ne orobe Bita kuri borite, muri mata kuri dayate, Nyanam linaki sidakanu. Udu kalam takini hanama mayang kadi taki, Disham nadaina kiru paruwa. Nurado lugu budu dasinare gatinya goladi champa galare ape gatin tangi gatari me marinya singkiti niri galare goladi champa galare ape gatin tangi
गाड़े रे Aramburu chotire kursi mundil chitanire manita kamire chali gele to kalang sete jalang tili yalang daina lebeniruwa lang janam diso Sete jalang tili yalang dainat leberu oralang janam disa so kalang sete jalang tili yalang dainat leberu oralang janam disa Kululu maki tolakana Ada mai se nakan Kolkata jogiri Baba mai se nakan jumi asama bila Takayata ni bina kululu maki Kolkata jogiri Baba mai se nakan jumi asama bila Takayata ni bina kululu Ale chuti kare janum dari kululu maki tolakana nakan Kolkata jogiri Baba mai se nakan jumi asama bila Takayata ni bina kululu Kolkata jogiri Baba mai se nakan jumi asama bila Takayata ni bina kululu Ale jadi kare janum dari kululu maki tolakana nakan Kolkata jogiri Baba mai se nakan jumi asama bila Takayata ni bina kululu jal pare tipi pani pare pini eso tiri suna chata tuja karo doroye gachari jale gaye na pore gachare jale gaye na pore Hनुमान गई कौन पते वीरी हनुमान गचरी पाता के ये नेरे हाथी घोड़ा गचरी पाता के ये नेरे हाथी घोड़ा गचरी फल के ये नेरे वीरी हनुमान
गई नजर बोल के ये मेरे वीर हनुमान केड़ 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 गजरी पता के ये मेरे हाथी घोड़ा गजरी पता के ये मेरे हाथी घोड़ा गजरी बोल के ये मेरे वीर हनुमान गई गजरी बोल के ये मेरे वीर हनुमान केड़ 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 कौन पोते हाथी जाई कौन पोते घोड़ा जाए कौन पोते हाथी जाई कौन पोते घोड़ा जाए कौन पोते वीर हनुमान गई कौन पोते वीर हनुमान गजरी पता के ये मेरे हाथी घोड़ा गजरी पता के ये मेरे हाथी घोड़ा गजरी बोल के ये मेरे वीर हनुमान गई गजरी बोल के ये मेरे वीर हनुमान गजरी बोल के ये मेरे वीर हनुमान गई गजरी बोल के ये मेरे वीर हनुमान Nentinyang puisa tinjam tura di samnyali jala. Nentinyang puisa tinjang jam tura di samnyali jala. Kita banjom, ladu banjom. Jini akali bu lo, jini akali bu. Ay ay. This is the second largest indigenous community in his country. So ladies and gentlemen, I now call upon our chief guest of the day, Mr. Phulwant Chaudhary from Tharo indigenous community, Nepal, to come and address us with good tidings. नमस्कार, जोहार। मैं थारू आदिवासी जनजाति से बिलोंग करता हूँ। मेरा पहली भाषा, मेरा नेटिव लैंग्वेज थारू है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में भी बोलना कोशिश करूँगा। अगर कहीं गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले मैं ये 25वां विश्व आदिवासी दिवस
के इस पावन अवसर में मैं आप सभी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे सेलिब्रेशन एक्टिविटीज़ हम करते हैं विश्व के सारे कोने कोने में, न कि भारत में। विश्व में आपका 370 से 500 मिलियन जो आदिवासी हैं, वो हम 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरह आज कल से हम ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस हम यहाँ दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं इस सम्मानित मंच में आप सभी को नेपाल के तरफ से और मेरा थारू आदिवासी जनजाति के तरफ से और यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशू के तरफ से मैं आप सभी को फिर से शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। मैं भारत में एक साल में बहुत टाइम मैं भारत में आता हूं, कभी कार्यक्रम में, कभी मैं अपना व्यक्तिगत काम से भी। तो मैं इसलिए आता हूं कि भारत से नेपाल का बहुत पुराना, बहुत सामीप्य है, माया है, स्नेह है। और आदिवासी जनजाति जो नेपाल में है और जो इंडिया में भी हैं, तो बहुत सारे संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज एक सिमिलर है। तो हमारा जो आदिवासी जनजातियों का जो मुद्दा भी होता है, समस्या है, वो भी बहुत सारे एक रूपता है। तो इसलिए मैं प्रत्येक वर्ष इस दौरान में आदिवासी जनजातियों को मुद्दों को लेकर, आदिवासी जनजातियों को जो भी अभियान चलता है, तो उसमें मेरा ऐक्यबद्धता जनाने के लिए, ऐक्यबद्धता करने के लिए मैं आता हूँ। इसलिए भी मैं आता हूँ कि मैं दुनिया का बहुत कोने कोने में विजिट करता हूँ। तो वो उस कंट्री में जाने के लिए मुझे वीज़ा का ज़रूरी होता है। लैटिन अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, अफ्रीका जाओ, जहाँ भी जाओ तो वीज़ा का ज़रूरत होता है। लेकिन भारत आने का लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं होता है। तो मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक नेपाल का आदिवासी और नेपालियों के लिए एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए भारत और नेपाल का जो एक संबंध है बहुत पुराना है और बहुत प्रगाढ़ संबंध है। तो मैं फिर भी भारत का आदिवासी जनजातियों और भारत का सारे नागरिकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम संस्कार, चलन चलती, रीति रिवाज जो भी है, राजनीतिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, ये मुद्दा में हम एक हैं कि हम सारा दुनिया का आदिवासी जनजातियों मिलकर कि इस समस्या, इस मुद्दों को हम समाधान करें। और मैं इस सम्मानित मंच में भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी है। मैं भारत सरकार को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत सरकार ने आदिवासी जनजातियों के लिए बहुत सारे नीति, नियम, पॉलिसी बनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से भी बहुत सारे ट्रीटीज, कन्वेंशन, डिक्लेरेशन, एग्रीमेंट में हस्ताक्षर हुआ है।
तो उस ट्रीटी कन्वेंशन डिक्लेरेशन में भी भारत सरकार को मैं अपील करना चाहूँगा कि उस डिक्लेरेशन ट्रीटी कन्वेंशन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि आदिवासी जनजातियों को कल्चरल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉलिटिकल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चरल राइट, पर्यावरण राइट और ह्यूमन राइट, जो भी राइट्स हैं उसमें भारत सरकार का बहुत योगदान है। तो मैं इस अभियान में, इस दौरान में फिर भी मैं भारत सरकार को अनुरोध करना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन का जो आदिवासियों को जो एक फोरम है, जहां मैं एशिया महादेश से रिप्रेजेंट करता हूं, तो यूनाइटेड नेशन जो परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज है, उसने बहुत सारे रिकमेंडेशन अपना मेंबर स्टेट के लिए वो रिकमेंडेशन देता है। तो वो रिकमेंडेशन में भी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इस वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मुख्य जो थीम है आदिवासी की भाषा, तो आदिवासी भाषा के विषय में भी जो यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम का जो 2019 का जो एनुअल सेशन हुआ न्यूयॉर्क में, यूएन हेडक्वार्टर में, तो उस एनुअल सेशन से बहुत सारे पर्यावरण के लिए, भाषा के लिए, कल्चर राइट के लिए, सोशल राइट के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया गया है। तो वो रिकमेंडेशन भारत सरकार उसको फॉलो करें, मेरा ये अनुरोध है। और जितने भी यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम का जो रिकमेंडेशन है मेंबर स्टेट के लिए, एक महत्वपूर्ण एक रिकमेंडेशन है कि आदि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, आदिवासी जनजाति, इंडिजिनस पीपुल करके रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये हमारा बहुत पहले से रिकमेंडेशन है। तो ये भारत का ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं भारत सरकार को अनुरोध करना चाहता हूँ। तो ये रिकमेंडेशन हम पहले ऑफिशियली हम भारत सरकार को दे चुके हैं। तो फिर मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि भारत में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जिसके हम शेड्यूल कास्ट, फिफ्थ का शेड्यूल कास्ट करके कहते हैं, इनको आदिवासी करके रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मेरा ये अनुरोध है। देखिए, आदिवासी जनजाति, अभी हम भरकर इस मंच में कल्चर प्रोग्राम हम यहाँ परफॉर्मेंस किया है, 2-3 परफॉर्मेंस। तो वो परफॉर्मेंस प्रकृति से जुड़े हुआ है और हम पूजा भी किए, वो पूजा भी प्रकृति से प्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ है। तो आदिवासी का जीवन शैली, दिनचर्या, वो प्रत्यक्ष पर्यावरण से, प्राकृतिक स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए प्राकृतिक स्रोत, जमीन, जंगल, जमीन, पानी, जो भी प्राकृतिक स्रोत है, उसमें आदिवासी का प्रत्यक्ष संलग्नता, प्रत्यक्ष अग्रिम अधिकार होना चाहिए। जो अधिकार यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपुल, उसमें भी लिखा हुआ है और भारत सरकार इस डिक्लेरेशन से सहमत है। तो इसलिए मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि आदिवासी का जो जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार है, वो सुनिश्चित करने के लिए हम सारे आदिवासी लगाए सरकार, हम एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि हमारा अधिकार सुनिश्चित करें। हमारा जो कल्चर है, सोशल राइट, जो पर्यावरण राइट है, उसको ग्रहण करने के लिए हमारा प्रत्यक्ष संलग्नता भी होना चाहिए। अगर हमको प्रकृति से विच्छेद कर देंगे
तो हमारा जीवन शैली, हमारा जो आइडेंटिटी है, जो हमारा अस्तित्व है, वो जोखिम में हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम अपना आइडेंटिटी प्रमोशन करना है, हमारा अस्तित्व इस धरती में प्रमोट करना है, उसको बचाना है, तो सबसे पहले आदिवासी जनजाति का जो प्रकृति का जो अधिकार है सुनिश्चित किया गया है, उसको बचाना चाहिए और प्रकृति से आदिवासी जनजातियों को विच्छेद करना नहीं चाहिए। तो मैं आप सभी को मैं अनुरोध करना चाहूँगा, विशेष करके भारत सरकार को, कि आपका आदिवासी जनजाति के अधिकार के लिए बहुत सारे काम किए हैं, वो बहुत सराहनीय है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। तो भी अब अगला दिन में इसका प्रमोट करने के लिए इफेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। तो मैं इस कार्यक्रम का जो मुख्य आयोजक है, मैं आयोजक को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस सेलिब्रेशन करने के लिए आप मुझे एक मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने मुझे सम्मान किए हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आदिवासी का जो अधिकार को जो बात करते हैं उस पर और मैं जिम्मेवार मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। मैं भारत का बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी में विजिट किया हूँ, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, बहुत सारे मैं भारत का स्टेट में मैं गया हूँ। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि भारत ऐसा डाइवर्सिटी है, इतना कल्चर में इतना धनी है, वो आदिवासी हैं। तो वो आदिवासी को अधिकार किसी न किसी तरह से अधिकार को कुंठित करने के लिए कभी कभी हम संरचनागत तरीका से सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टमेटिक वायलेंस, कुछ सिंड्रोम हम देखते हैं। तो इस अभियान के लिए हम थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए कि हमारा अधिकार अगर सिस्टमेटिक तरीका से अगर कुंठित होगा, उसको वायलेट होगा, तो हमारा आइडेंटिटी और अस्तित्व और खतरा में रहेगा। तो इस अभियान में हम अभी भी बहुत हमारे पास टाइम है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जितने भी पॉलिसी हैं, डिक्लेरेशन है, कन्वेंशन है, ट्रीटीज हो, उसको फॉलो करना चाहिए। हम सभी लोग हम इकट्ठे होकर, तो तब हमारा अधिकार सुनिश्चित होगा। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत समय मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। मेरे साथ में मैं थारू आदिवासी से बिलोंग करता हूँ। मेरा कम्युनिटी से जो बहुत ट्रेडिशनल एक कल्चरल ग्रुप मेरे साथ में है, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारत का आदिवासियों से हमारा कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसके लिए भी मैं इस कार्यक्रम का आयोजक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आभारी हूँ, विशेष करके निकोलस बारला, बेंजामिन, विशेन एक्का, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम बहुत सारे, अशोक चौधरी भी हैं, हम बहुत सारे आदिवासी जनजातियों को अधिकार के लिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम कार्य योजना बनाते हैं। तो हम नेपाल लगायत एशिया के जितने भी आदिवासी जनजाति हैं, तो हम अपना ये प्रॉब्लम में, अपना ये इश्यू में हम जब भी एक साथ हैं। और फिर से भी मैं यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज़ की तरफ से मैं भारत का आदिवासी जनजातियों से मैं सॉलिडारिटी मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि आपका जितने भी मुद्दों में भारत सरकार से जो लॉबिंग करना है, जो कोऑर्डिनेट करना है, इसके लिए हम साथ साथ बैठकर काम करें। अभी बहुत सारे फॉरेस्ट का कुछ इश्यू मैंने सुना है,
माइन का, लैंड ग्रैबिंग का मैंने कुछ स्टेट में मैंने इस इशू को मैंने सुना है। तो इस विषय में भी हम साथ में बैठकर भारत का ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, आईपीएस एक्टिविस्ट के बीच में बैठकर अच्छा रास्ता ढूंढें कि हमारा अधिकार सुनिश्चित हो। फिर से मैं इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में फिर से मैं आपको यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम की तरफ से मैं शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। और आपसे मैं जब भी सामाजिक अभियान में, सांस्कृतिक अभियान में, इस अभियान में मैं साथ में हूँ। हम साथ साथ करेंगे और हमारा अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी हम साथ में अपना आवाज़ उठाएंगे। और इतना ही कहते मैं अपना मंतव्य, मैं बात यही समाप्त करना चाहूँगा। जोहार, नमस्कार। Thank you, sir. अभी बहुत सारे फॉरेस्ट का कुछ इशू मैंने सुना है। माइन का, लैंड ग्रैबिंग का मैंने कुछ स्टेट में मैंने इस इशू को मैंने सुना है। तो इस विषय में भी हम साथ में बैठकर भारत का ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, आईपीएस एक्टिविस्ट के बीच में बैठकर अच्छा रास्ता ढूंढें कि हमारा अधिकार सुनिश्चित हो। फिर से मैं इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में फिर से मैं आपको यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम की तरफ से मैं शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। और आपसे मैं जब भी सामाजिक अभियान में, सांस्कृतिक अभियान में, इस अभियान में मैं साथ में हूँ। हम साथ साथ करेंगे और हमारा अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी हम साथ में अपना आवाज़ उठाएंगे। और इतना ही कहते मैं अपना मंतव्य, मैं बात यही समाप्त करना चाहूँगा। जोहार, नमस्कार। कि वे अपने लोक संगीत को हम सभी को सामने प्रस्तुत करें और बिहार के गोंड आदिवासी समुदाय की उनकी जो परंपरा है, जो उनकी लोक संगीत है, वो यहाँ पर लेकर के मैं आपको बतलाना चाहूँगा। ये जो संगीत है ये गाया जाता है फागुन के महीने में। फागुन का जब मौसम होता है तब उस महीने में ये गाया जाता है ये लोक संगीत। और ये बड़ा ही प्रसिद्ध लोक संगीत है। अगर आप YouTube में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको फागुन के महीने का गोंड आदिवासी समुदाय के लोक संगीत मिल जाएंगे। तो उसी की एक झलक हमारे बिहार से आदिवासी गोंड समुदाय आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हमारे बिहार के गोंड आदिवासियों का स्वागत करें इस पूर्ण मंच पर। आज इस मंच के समक्ष हमारे पूरे विश्व से आए हुए अपने आगंतुक बंधुओं को, अपनी माताओं बहनों को सबसे पहले बिहार गोंडवाना नृत्य के तरफ से मैं व्यास सुग्रीम ज्ञानी भोजपुरी गायक आप सभी का कोट कोट हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, बड़ी विचित्र स्थिति देखने में आज मिल रही है। पहली बार हम भी इस कार्यक्रम में आए हैं कि इंडिजीनियस कार्यक्रम दिल्ली में मनाया जा रहा है। हमारा जो परंपरा है इंडिजीनियस का, आदिवासी समाज का, हर राज्य के लोग अलग अलग अपना कला बिखेर रहे हैं। ये एक संदेश पूरे विश्व में जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में आज भी इंडिजीनियस आदिवासी लोग कितना डेवलपमेंट किए हैं, आज ये सामने देखने को मिल रहा है। आइए हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर पूरे विश्व के अंदर विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत ये प्रचारित और प्रसारित है। हम भोजपुरी गायक कलाकार व्यास सुग्रीम ज्ञानी माननीय मदन जी के आग्रह पर हमने के आयल बनी जा, हमने के बीच में उहे के बुलाला बानी मदन जी भोजपुरी गीत
हे भैया, अरे भारत ही देश हुए, अरे सोने के चिरैया से मोर मन बसे ही हो हरे बटोहिया। अरे गंगा रे जमुनवा के अरे नीरा माल पानिया से, अरे सरयू घमकी रावे रे बटोहिया। पूरे विश्व में लोग पूछा था कि बिहार के भैया इंडिजीनस के न वालो, अरे जाहू जाहू भैया रे, अरे बटोही हिंद देखी आहू, चारों वेद ऋषि जहाँ, अरे गाँव रे बटोहिया। हे भाई, सावन फागुन के महीनवा में अरे चह के कोयलिया हो आवेला बसंत के बहार रे बटोहिया। ये भैया लोग, हमने के गौड़ समाज के लोग, हमने के हइये वाद्य यंत्र बाटे, और सबसे पहले हमने के बड़ा देव के आदिवासी समाज पूजन करी ले जा। हमने के अपना लोहबान जला करके अपना देवी देवता के कौना रूप में कौना भाव में हमने के मिलाई ने जा। कैसे? हे भाई, अरे बड़ा देव करी सुमीरा नवा, अरे हम पूजा नवा करी ना। भैया, हम अपना देवी देवता के क्या मिलाव जाता नहीं। हे अरे बड़ा देव करी सुमीरा नवा, हम पूजा नवा करे ना। बड़ा देव करी सुमीरा नवा, हम पूजा नवा करे ना। सुमीरा नवा, हम पूजा नवा करीना, हम भी नवा धरीना। हम पूजा नवा करीना, हम भी नवा धरीना। हर भाड़ा देवता आगे क्या हो रहा है भाई? अरे पृथ्वी पवन पर कसयरु पानी, पृथ्वी पवन पर कसयरु पानी। हे भैया, हे चारी गो तत्व के हम जानतानी, ये ब्राह्मण लोग झूठो गिनेला भाई। अरे औरी ऊपर बाटे गगनवा, अरे औरी ऊपर बाटे गगनवा, अरे हम पूजनवा करीना।
हम पूजा नवा करीला हम सुमिरा नवा करीला पूजा नवा करीला हम सुमिरा नवा करीला हम पूजा नवा करीला हम सुमिरा नवा करीला हम पूजा नवा करीला हम सुमिरा नवा करीला राजे वक्त ए भैया हमनी के देवता केंगा माने खाना सती रंगी धरी ध्वजा लहराता खाना सत रंगी ध्वजा लहराता ए भाई खाना सतरंगी ध्वजा लहराता हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और सूरज में 7 रंग है थारा सतरंगी ध्वजा लहराता और महुआ चनावा के भोगावा लगाता महुआ चना के भोग लगाता सा लगा था और जरा रखा अरे औरी जरे लाहो लोहवानवा भाई हो अरे औरी जरे लाहो लोहवानवा अरे हम पूजा कंकाली माई के पूजा करने जा काली कंकाली माई मातृ शक्ति आवा मारी सकते मारी सकते कंकाली माई मातृ शक्ति आवा हे माई काली कंकाली हमनी के बड़ा देव के पश्चात तोहरा का पूजन करते हैं जा काली माई के बकरा चढ़ेला बिहार में भाई हो ये सावन के महीना में हमनी के पूजा करी ले जा कैसे भैया अरे कलिखन काली बाई अरे जल्दी से आवो और सल्ला गगरा और सब चीज देखावे अरे सुगरी में गावो तारे गानवा भाई हो अरे सुगरी में गावो तारे गानवा अरे जेकर जिला सिवानवा
भाइयों, माताओं, बहनों, हम बिहार के से आए हैं। हमारी टीम के साथ जो गलती सही हो उसे क्षमा करिएगा। आप लोगों ने मौका दिया, मदन भाई को धन्यवाद। कोट कोट तालियां बजा दीजिए, मजा आए। सो फागुन के रंग में रंगने के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सोनभद्र यूपी के हमारे विधायक आए हुए हैं, हरिराम चेरो जी। हम आग्रह करते हैं कि वो अपना आशीर्वचन दें और साथ ही साथ जो सोनभद्र में घटित घटना घटी है उसके रिगार्डिंग भी वो अपनी पोजीशंस पे बात करेंगे। मैं आग्रह करती हूँ सादर हरिराम चेरो जी को। धन्यवाद। इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारे बहन, आज विश्व आदिवासी दिवस के दूसरे दिन के महासंगम पर्व पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल से चल के आए माननीय फूलवंत चौधरी जी, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में बांग्लादेश से आए राजा देवाशीष जी और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मार्स अंडल जी और इस कार्यक्रम में तमाम भारत के कोने कोने से आए आदिवासी समाज के मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित हमारे आदिवासी समाज के नेतागण, जनपद सोनभद्र से हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और गौड़ समाज के जिलाध्यक्ष राजेश गौड़ जी, कोल समाज का नेतृत्व करने वाले जनपद सोनभद्र से चल के आए भाई वासुदेव कोल जी और पूरे देश भर से आए हुए हमारे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों, प्यारे बच्चे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले तमाम हमारे सांस्कृतिक कलाकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम का जो सफल आयोजन किए हैं ऐसे हमारे तमाम आयोजक साथीगण, सबसे पहले तो मैं नेपाल से आए हुए मुख्य अतिथि को, बांग्लादेश से आए अति विशिष्ट अतिथि को, ऑस्ट्रेलिया से आए अति विशिष्ट अतिथि महोदय को, इस भारत भूमि के नगरी में मैं पूरे भारतवर्ष के आदिवासी समाज की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं हृदय से। चेरो समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने चेरो समाज की ओर से भी मैं आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश के आदिवासियों की तरफ से भी आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, चूँकि
ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इसमें परिचय भी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग विधायक के रूप में मुझे यहाँ देख रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं, कहाँ से हैं, संक्षिप्त में आपको अपना परिचय दूंगा। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला जनपद सोनभद्र है। वहाँ का दुद्धी विधानसभा है। उस विधानसभा का मैं 2017 में एमएलए निर्वाचित हुआ हूँ। उसके पहले 1989 से लेकर के 2017 के बीच में हमने तमाम संघर्ष किया। 2 बार मैं अपने गांव का प्रधान रहा, प्रधान संघ जनपद सोनभद्र का जिला अध्यक्ष रहा। अखिल भारतीय चेरो महासभा का मैं 2000 से ही छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार को मिला करके एक सम्मेलन झारखंड में हुई थी। वहाँ पे हमें लोगों ने चेरो समाज का राष्ट्रीय नेतृत्व का दायित्व दिया है। तब से मैं लगातार इस पद पे पदासीन हूँ। नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, हमारा मुख्य पेशा वहाँ पे आदिवासी जो हमारा बिरादरी है, चेरो और बैगा, ये बिरादरी एक ही है। बैगा बिरादरी का मुख्य काम है पूजा पाठ करवाना, माड़ो गाड़ना और अपने ही समाज का पूजा पाठ नहीं करवाना। जितने भी हमारे ज़िले में ये अगल बगल पड़ोस के हमारे पड़ोसी राज्य भी हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी हमारी बैगा बिरादरी जो है, चाहे धान का रोपनी हो, चाहे जो है किसी का ब्याह होने लगे तो मटकुड़वा कहते हैं, उसका माड़ो का कार्यक्रम में जब तक बैगा पूजा नहीं करेगा तब तक उसका न तो ब्याह होगा और ना धान के गड़ाई होता है। एक तो ये है। दूसरा मुख्य पेशा हम लोगों का जंगल में जो है, आज के 5-7 पीढ़ी पहले अहेर खेलना था और अपना जीवन यापन कंद मूल्द खा करके व्यतीत करना था। साथियों, मैं अपना राजनीतिक जीवन संक्षिप्त परिचय में आपको हमने बता दिया है। साथियों, अब मैं आ रहा हूँ आपके जो पूरे विश्व के आदिवासी समुदाय है, जो हमारा वनवासी समुदाय है, उस पे हमारे तमाम विद्वान, मुख्य अतिथि और जो देश और दुनिया में भ्रमण करके और हमारे आदिवासियों का पहचान और इनका संस्कृति सभ्यता के बारे में बताते हैं। उसी कड़ी में मैं जाता हूं। नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, सबसे पहले तो हमारे आदिवासी भाइयों को, चूँकि यहाँ सब प्रबुद्ध लोग हैं, उनको ये जानना होगा कि ये देश ही नहीं, ये पूरा विश्व आदिवासियों का है। ये आपको जानना पड़ेगा। ये जंगल आपका है, ये ज़मीन आपका है, ये गंगा आपका है, ये यमुना आपका है, ये पहाड़ आपका है, ये पेड़ आपका है। जब तक आप अपना अधिकार स्वयं नहीं जानेंगे तब तक आपका जो है अधिकार नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोनभद्र की घटना पे जैसा संचालक महोदया ने कहा है, सोनभद्र में जो है लगभग 16 लाख जनसंख्या है वोटर, उसमें 5 लाख आदिवासी हैं। भारी तादाद में वहाँ गौड़ संख्या है, लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में गौड़ हैं। 1 लाख चेरो बैगा हमारी बिरादरी है, 1 लाख खरवार है, पनिका 50,000 है, लगभग 5 लाख आदिवासी में वहाँ पे जो है हम लोग 2 विधायक हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल ट्राइबल के 2 विधायक हुए हैं। एक ओबरा मेरे विधानसभा के बगल का और एक जो है दुद्धी, जहाँ 403 की आबादी है, 403 विधायक चुन करके आते हैं उत्तर प्रदेश में। वहाँ केवल मात्र आपका विधायक उत्तर प्रदेश के सदन में नेतृत्व करने वाला मात्र 2 विधायक है। नौजवान साथियों, फिर भी मैं जब तक अपने जीवन में मैं संघर्ष करता रहा तो मेरे मन में वहाँ की जो मूलभूत समस्या है, आदिवासियों का उत्पीड़न है,
हमने हमेशा किसी के सरकार रही हो, पूर्ववर्ती सरकार, उसमें हमने बड़ा प्रमुखता से दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के और जो है प्रदेश के लखनऊ मुख्यालय से लेकर के तमाम हमने आवाज़ उठाया। लेकिन आज़ादी के बाद आज भी हमारा आदिवासियों का वहाँ जो विकास होना चाहिए वो नगण्य है नौजवान साथियों। जबकि वहाँ आदिवासी हमारा जो भी, चाहे आपके झारखंड के राजा मेदिनी राय रहे हों, चाहे वहाँ पे जो भी राजा रहे हों, सब हम लोगों का ही जो है वहाँ पे आज भी हम लोगों का राजपाट है, आज भी हम लोगों का वहाँ पे किला है। लेकिन आज वहाँ पे सोनभद्र में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई हैं। आप नोएडा ले लीजिए, गाजियाबाद ले लीजिए, उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा जिला है औद्योगिक तो वो है सोनभद्र। लेकिन वहाँ के अभी भी आदिवासियों का विकास ज्यों के त्यों है। इनके विकास के जो तमाम योजनाएं हैं उसको लागू करके और जो है निजात दिलाएंगे। अभी मैं बता दूं कि आदिवासियों का पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। मैं तो अभी मांग किया हूँ कि हर प्रदेश में आदिवासी विश्वविद्यालय का स्थापना हो, जिसमें जो है आदिवासी अपना संस्कृति, सभ्यता, गोंडी धर्म का प्रचार प्रसार हो। यहाँ पे जो है आरबी का पढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ आदिवासियों का जो रीति रिवाज है, संस्कृति, सभ्यता, उसकी पढ़ाई नहीं होता है। तो ऐसे में मैं मांग कई बार कर चुका हूँ केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी, कि आदिवासियों का जो संस्कृति है, सभ्यता है, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। ऐसा मैं मांग किया हूँ। नौजवान साथियों, मैं बहुत कुछ न कहते हुए आज इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, जो व्यवस्थापक हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा आयोजन आप करके, और यही नहीं दूसरे देशों के लोगों को भी बुला करके जो हम इस भारत का भी समस्या जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रखेंगे, ऐसा काम आप लोगों ने किया है। समय समय पर हमें भी बुला कर लिया करिए, मैं आपका आभारी रहूँगा। तमाम चीज़ों पे हमें बात करनी थी, लेकिन समय कम है। मैं पुनः एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी समाज, जय सेवा, जय बाड़ादेव, जय जोहार। धन्यवाद। नरसंहार और पीड़ितों को न्याय मिले, जल्द से जल्द मिले, इसके लिए हम उनसे निवेदन भी करते हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर हमारे इनॉग्रल सेशन के मार्क कैनेडल फूलमन चौधरी जी, देवाशीष चकमा जी और हरिराम चेरो जी को आमंत्रित करूंगी कि इस कार्यक्रम में हम उनको थोड़ा सा एक सम्मान देना चाहते हैं, तो कृपया वो मंच पे आ जाएं। May I request all the distinguished guests, chief guest, our special guest, guest of honors, chief guest Mr. Fulman Chaudhary, special guest Raja Debashish Roy, guest of honor Mark Annandale, and our special guest Hariram Cheruji to please come up on the stage. We would like to felicitate you, and to felicitate I would like to invite Dr. Vincent Ekka, Mr. Sushil Lakda, Advocate Nicholas Barla and Alma Barla to kindly come up on the stage and give them token of our love, our gratitude. Please come up on the stage. Dr. Vincent Ekka, Mr. Sushil Lakda, Ms. Alma Barla and Advocate Nicholas Barla, may I request all of you to kindly give our guest, special guest, guest of honor and chief guest, our loving gratitude and token from our side to the indigenous community of different countries. Mr. Fulman Chaudhary, been felicitated by Advocate Nicholas Barla. I would like to request Mr. Sushil Lakda to give our loving gratitude to Hariram Cheroji.
May I request Dr. Vincent Tekka felicitate Raja Debasis Roy to give him our gratitude and token of love. मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मैडम अलमा बरला जी को कि वे सामने आए एंड मार्क एनेदिल को हमारी तरफ से सम्मान और प्रेम भेंट के स्वरूप दें। धन्यवाद। आप सभी विशिष्ट अतिथियों, मुख्य अतिथियों और हमारे जितने भी अतिथि लोग आए, वी ऑल थैंक यू होल हार्टेडली फ्रॉम अ कोर ऑफ आवर हार्ट दैट यू टुक टाइम एंड यू केम टू इंडिया एंड इट इज़ अ प्रिविलेज दैट यू आर देयर टू सपोर्ट आवर इंडिजिनस कम्युनिटी। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश विदेश से लोग, हमारे आसपास के देशों से लोग हमारे भारत के आदिवासियों का साथ देने के लिए, उनके साथ कदम से कदम बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं। और ये एक आज ऐतिहासिक दिन है जहां पर केवल भारत नहीं बल्कि भारत के आसपास के जितने भी हमारे देश हैं, वे सभी लोग एक साथ एक मंच पर आदिवासी और आदिवासियत के लिए खड़े हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपने हाथ में पकड़ा है, ये हमारे आदिवासी परंपरा का एक प्रतीक है। इसको हम लोग अपनी भाषा में पथलगड़ी बोलते हैं। ये वो चीज़ है जहाँ पर हम अपने आदिवासी लोग अपने गाँव में गाड़ते हैं और एक प्रतीक है अपने भाई बंधुओं को बताने के लिए कि ये हमारा समाज है, ये हमारा प्रतीक है। यहाँ से हमारी परंपरा सभ्यता शुरू होती है, यहाँ से हमारा देश, हमारा क्षेत्र शुरू होता है। और इस पथलगड़ी के ज़रिए हमने जितने भी संविधान के हमारे लिए, आदिवासियों के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं आदिवासियों के लिए, उनको इन पथलगड़ी में रखा गया है। आप लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस भेंट को सप्रेम स्वीकार किया और हमारे सारे आदिवासियों को आपने अनुग्रहित किया अपने उपस्थिति से। धन्यवाद। आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट दैट यू टुक टाइम एंड grace us with your presence. Thank you so much. Now may I request Advocate Nicholas Bala.